اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے کسے پایا۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے کسے پایا۔ چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، گریں گے رحمت کے پھول تو ہم اٹھاتے۔ اور پھر کسی شاعر نے کہا ہے کہ آؤ یارو ہنر آزمائے، آؤ یارو ہنر آزمائے، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے اور اس کے تعلق سے آپ کے کانوں کے حوالے کچھ باتیں میں پیش کروں، ضروری سمجھتا ہوں بارگاہ رسالت میں بآواز بلند درود پاکہ نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ لوگ جشن شہداء کرام کی بارگاہ میں آپ تشریف فرما ہیں، اور جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب اسلام کے خاطر جو قربانیاں پیش کی، تو ان کے والد کی حقیقت ایسی ہے۔ فرمایا گیا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے قریب ذکر الہی میں مشغول تھا، اور جو ابھی کعبے کا جو ابھی ماحول ہے، جو کعبے کے گرد گرد جو بلڈنگ وغیرہ ہے، اس زمانے میں نہیں تھی۔ جس طریقے سے ایک دیہات ہوتا ہے، اس طریقے سے ماحول ایسا تھا کہ کعبے میں کون بیٹھا ہے، کعبے کے قریب کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، سب مطلب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے، ایسا ماحول تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر الہی میں مشغول تھے، اور لوگ ادھر ادھر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی گھوم رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے۔ تو کچھ دشمنان اسلام 4-5 آدمی مل کر کے کچھ باتیں کر رہے تھے، اور ان کے پاس اچانک ایک مانگنے والا، بھیک مانگنے کے ارادے سے جب اس کے پاس وہ بھیک مانگنے والا پہنچا، تو انہوں نے کچھ دیا نہیں ان کو، مانگنے والے کو 4 میں سے کسی نے کچھ نہیں دیا، اور یہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس میں سے کسی نے اشارہ کیا کہ اس کو علی کے پاس بھیج دو۔ کیوں؟ تاکہ ان کی مذہب اڑایا جائے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ تو حضرت علی کے دین تو غربت والے دین ہے، فاقہ کشی کے دین، وہ کیا دیں گے حضرت علی؟ تو مذاق اڑانے کے اعتبار سے، ان کی ہنسی اڑانے کے اعتبار سے اس مانگنے والے کو علی کے پاس بھیجا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر الہی میں مشغول تھا۔ جب وہ مانگنے والا حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھیے ذکر حسین پہ بول رہا ہے، مگر علی کا مقام کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔
अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़िक्र इलाही में मशगूल थे और वो मांगने वाला जब आपकी बारगाह में पहुंचा तो हजरत अली की बारगाह में आकर के वो भीख मांगता है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माहौल के एतबार से आपने इधर उधर देखा, समझ गए क्यों, इसलिए अली ने इसलिए देखा कि दुनिया जानती थी कि अली का माहौल, घर का माहौल फाका कसी वाला है। कई कई दिन तक हजरत अली के घर में चूल्हे नहीं चलते, वो मालूम था। इस एतबार से हजरत अली ने देखा कि ये मांगने वाला मेरे पास आया, हालांकि इसको भी मालूम होगा कि अली के दिन कैसे गुजर रहे हैं। तो अली ने उसको देखा, फिर इधर उधर देखा, उनके ऊपर नजर पड़ी जिन लोगों ने उस मांगने वाले को भेजा था। तो हजरत अली समझ गए, हजरत अली समझे और उसके बाद कहा ठीक है, तो अपने हाथ खोल दे मेरी तरफ। आपने कुछ बड़ा कम किया, कहा मुट्ठी बना ले उसकी, हाथों को बंद कर ले, मुट्ठी बना ले उसकी। तो चाहे काम करिए, मुट्ठी वहां जाकर के खोल जिन लोगों ने मेरे पास तुझको भेजा था। अब ये भी सोच में पड़ गया, इसलिए उसने मुट्ठी बंद की तो उसको भी महसूस हो रहा था कि कुछ दिया नहीं। नजर ने तो देखा था कुछ नहीं दिया, महसूस भी हो रहा था कि कुछ नहीं है मुट्ठी में। उधर से वो लोग इस बात को देख रहे थे कि अली क्या देते हैं। भूख मारते हुए अली को उन लोगों ने भी देखा था। और जब ये मुट्ठी बना करके उन चारों के पास ये पहुंचा वो मांगने वाला, तो पूछा क्या दिया? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, इसलिए कि मैंने तो देखा कि कुछ नहीं दिया, मगर यूं कहा कि ये मुट्ठी वहां जाकर के खोलना। तो कहा ठीक, खोल दे तो मुट्ठी। जब मुट्ठी को खोला गया, कसम खुदा की किताबों में इस वाक्य को लिखा है कि मुट्ठी को जब खोला गया तो ये मांगने वाला तो ठीक, वो चार भी ताज्जुब में पड़ गए। ऐसा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुट्ठी में सोना रख दिया। ताज्जुब में पड़ गए, चारों चार उठ करके आए बारगाह आली, उस मांगने वाले को हाथ पकड़ करके लेकर के आए। बारगाह आली में आकर के पूछा उन चारों ने, 3 थे या 4 से अलग अलग रिवायत है, वो आए और फिर बारगाह आली में आकर के सवाल किया कि देखा तो हमने भी था और हमारा इरादा यह था कि हम तुम्हारी मजाक उड़ाने वाले थे, हम तुम्हारी हंसी उड़ाने वाले थे, हमको ये मालूम है कि तुमने कुछ नहीं दिया, सिर्फ कुछ पढ़ा, बताओ तो सही क्या पढ़ा? तो कहा मैंने अल्लाह के रसूल के ज़ाते अक़दस पर 10 मरतबा दरूद पढ़ा, उसके बाद ये देखिए ज़बान अली की है और दरूद नबी पर पढ़ा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अली की उस बात को इतना मशहूर करवा दिया कि वो जो लोग थे, जो दुश्मन इस्लाम थे, अली का मजाक उड़ाने के एतबार से मांगने वाले को भेजा था। रिवायत में आता है कि उसने नहीं, मगर वहां पर कुछ लोग दूसरे भी खड़े थे, उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। ये उसी अली के बेटे का नाम हुसैन है। शाबान की 5 तारीख को हजरत इमाम हुसैन ने इस रुए जमीन पर आपने जन्म लिया। अब देखिए, हम अजान पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ औलाद होती है तो अजान के लिए इमाम साहब को ले जाते, कभी पीर साहब को ले जाते, मगर हुसैन का आलम तो ये है कि खुद नाना ने, नबियों के सरदार ने हुसैन के कान में अजान दी। और हम तो कोई मीठी चीज मुंह में डालने के लिए रिश्तेदारों को बुला लाते हैं, कोई इज्जत वाला दोस्त को बुला लाते हैं। मेरे नबी ने लुआब दहन हुसैन के मुंह को खोला, उसमें लुआब दहन डाला। हुसैन ये है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी लोगों की फरियाद को सुनते हैं। जिंदगी जीने का तरीका लोगों ने सीखा नबी की बारगाह में। लोगों का आना जाना, मेहमानों का आना जाना, ये सब चीजें नबी कर रहे थे, नबी के जिम्मे करम में ये सब बातें थी। तो सहाबा ने सोचा कि यार नबी की बारगाह में खर्च ज्यादा है, आवक कम है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा ने अंदर अंदर ये मशवरा किया कि हम कुछ पैसा जमा करते हैं, जो जिससे जो बन पड़ता है दो, और उसके बाद ये जब जमा हो जाए तो नजराने के तौर पर नबी की बारगाह में पेश कर देंगे।
اور یہ آج کی بات نہیں، یہ آج کے لیے نہیں، ہم ہر مہینے یہ کام کریں گے۔ صحابہ نے یہ مشورہ کیا، صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ ایسا کریں گے، اور انہوں نے کر بھی لیا۔ جب ان لوگوں نے یہ کر لیا، اب یہ بات نبی کی بارگاہ میں لے جا کر کے یہ پیسہ دینا یہ کون کرے گا؟ تو پھر کسی نے بتایا کہ حضرت عباس جو ان کے چاچا ہے نبی کے، ان کی بارگاہ میں چلو، ان سے یہ بات کرتے ہیں، وہ سمجھا دیں گے نبی کو، نبی کی بارگاہ میں وہ رکھ دیں گے یہ جو بھی رقم آئی ہے وہ نذرانے کے طور پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب وہ نذرانے کے رقم کو لے کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور پوری حقیقت سمجھائی، لیکن نبی کی بارگاہ میں لوگوں کا آنا جانا، مہمان آتے جاتے ہیں، تمام ذمہ داریاں نبی کے اوپر ہے جو بھی اسلام کے تعلق سے ہیں، تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ پیسہ جمع کیا ہے، جو بھی سامان ہے ہم نے جمع کیا ہے، نبی کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر ہمیں دینا ہے، اور یہ کہہ کر کے دینا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں، وہ صحابہ بھی تھے ساتھ میں، اور جو سامان جو جمع ہوا تھا وہ لے کر کے آئے، اور نذرانے کے طور پر حضرت عباس نے جو صحابہ نے جو بات بتائی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات نبی کی بارگاہ میں رکھ دی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس نے یہ بات بتائی کہ صحابہ کا یہ ارادہ ہے، صحابہ یہ چاہتے ہیں، اور یہ آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ قبول کر لیجیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ابھی تو اپنے ہوٹھ مبارک کو جنبش دے، اپنی زبان مبارک کو ہلائے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت جبریل کو لے کر کے بھیجا۔ آیت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے اے محبوب قل لا اسألکم، یہ جو نذرانہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے ان سے تم کہہ دو، اور وہ نذرانہ لے کر کے کیوں آئے تھے؟ یہ بھی سوچنے والی بات، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی کھانا پینا کپڑے چپل جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، ہمارے کپڑے جو کچھ بھی کھانا پینا، اور یہاں تک کہ شریعت ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، جو کچھ بھی ماہ رمضان ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ نے یہ نبی کے صدقے میں ہم کو دیا ہے، ہم کو یہ معلوم تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب نبی کی بارگاہ میں وہ لے کر کے آئے، نبی سے یہ بات نبی کی بارگاہ میں پیش کی، تو نبی کو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے قرآن کی آیت لے کر کے بھیجا کہ قل لا اسألکم، اے محبوب تم کہہ دو لوگوں سے کہ میں جو تم لے کر کے آئے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا، اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں صرف تم سے، یعنی یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہتا ہے، کہنی تو نبی کو چاہیے تھی، بات نبی اور صحابہ کی تھی، بات کا جواب، بات جو رکھی تھی صحابہ نے، سوال رکھا تھا، جواب نبی کو دینا تھا، مگر جواب آیا کہاں سے؟ خدا کی بارگاہ سے۔ یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ سامنے صحابہ ہے، نبی ہے، سوال جواب یہاں ہے، جواب وہاں سے کیوں آیا؟ دیکھیں تقریر آپ لوگ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، تقریر کا مطلب یہ کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ اب سیکھنے والی بات بتاؤں کہ بات صحابہ اور نبی کی سوال جواب سامنے آمنے، مگر تیسری جگہ سے جواب کیوں آیا؟ اللہ نے کہا ہے محبوب تم کہہ دو، اور یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا قل لا اسألکم، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو کہ تم سے اجرت تو طلب نہیں کرتا، مگر میری قرابت داروں سے تم محبت کرتے رہے، میری قرابت داروں سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، کسی صحابی نے پوچھ لے یا رسول آپ کے قرابت دار ہے کون؟ دیکھیں سوال جواب تو یہاں تھا نا، صحابہ اور نبی کی بات تھی، جواب وہاں سے آیا، تو اس نے جواب کیوں دیا؟ اس نے جواب اس لیے دیا کہ اہل بیت وہ مقام رکھتی ہے کہ خدا خود اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ورنہ اس کو بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے بول کر کے، اس نے جواب دے کر کے پوری دنیا کے لوگوں تک پیغام دے دیا، میں اس لیے بولا اس اہل بیت سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اور
मेरी कराबत दावत से तुम मोहब्बत करो, ये अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाह खुद मोहब्बत करता है, और क्यों ना करे खुदा उससे मोहब्बत अहले बैत से। इसलिए कि अहले बैत, देखिए मुझे करबला पे बोलना इंशाअल्लाह ताला, जो दीन है मेरे उसके अंदर इंशाअल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। ये बात जो छिड़ गई है, अली का एक वाक़या और मैं बता दूं, अहले बैत से खुदा मोहब्बत क्यों ना करे? इसलिए कि अली का लम्हा लम्हा, एक एक पल अल्लाह के लिए गुजरता था, एक एक पल, एक एक पल, लम्हा लम्हा। एक मरतबा एक इस्लाम का दुश्मन आया मुकाबले के लिए, हजरत अली से मुकाबला हो गया उससे। पहले तो उसने कुश्ती का बहाना किया, कुश्ती की बात पूछी, मगर दिल में तो उसके बुर्ज था। और अली पहलवानी के मामले में अली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। देखिए अली का तर्ज़ अमल देखो, जब अली उससे कुश्ती कर रहे थे, कभी ये ऊपर हजरत अली के ऊपर तो ये कभी आया ही नहीं। हजरत अली हमेशा उसके ऊपर सीने पर सवार होते रहे। अब उसने देखा कि यार ये, इसलिए कि हजरत अली छोटे कद के थे आप, और जो आपसे लड़ने आया था वो आपके उम्र के एतबार से आपसे वो बड़ा था, वो पहलवान। उसने दिल में सोचा कि यार ये तो मेरी मुल्क अरब में बेइज्जती हो जाएगी। उसने ये सोच करके हजरत अली के मेरे सीने पर सवार हो गए, लोग क्या बातें करेंगे, भला पहलवान सुनेगा तो क्या कहेगा, वो पहलवान सुनेगा तो क्या कहेगा। इस तरीके से एक नौजवान बच्चा सीने पर सवार हो गया पहलवान के। तो अब उसने अपनी इज्जत बचाने की खातिर, हजरत अली ने तो नियाम से तलवार भी निकाली, उसके हलक गर्दन पर आ जाए इतनी करीब तलवार चली आई, मगर उसने इज्जत बचाने की खातिर अली के चेहरे मुबारक पर थूक दिया। शायद हो सकता है ये 4 दिन में ये वाक्य आपने सुनने में आया, मगर आपका ध्यान उस तरफ ले जाओ कि अली के चेहरे मुबारक पर उसने थूका। अली ने तलवार को हटा लिया, सीने पर से आसानी से हट गए। जिस सीने पर चढ़ने के लिए अली को मेहनत करनी पड़ी, वो सीने पर से आप आसानी से हट गए, चलने लगा। अब उससे कोई बातचीत नहीं। उसको भी ताज्जुब हुआ कि मेरी जान तो इतनी करीब थी, चली जाती मेरी जान, तलवार इतनी करीब आ गई थी, मगर हुआ क्या कि अली हट गए सीने से, उतर गए। उससे रहा नहीं गया, पूछा, पीछे पीछे गया और अली से पूछा, ये अली, मौत तो बिल्कुल करीब थी, तलवार तो यहां तक आ गई थी, रोक क्यों नहीं तलवार को? अली फरमाते हैं कि मेरा एक एक लम्हा खुदा के लिए निकल रहा है। मैं मेरी जिंदगी जो बशर करता हूं, खुदा की मोहब्बत में बशर करता हूं। सुन, तू मेरे मुकाबले में आया तो मैं ये सोच कर के तेरे साथ मुकाबले के लिए तैयार हुआ कि तू खुदा का दुश्मन है। तेरा और मेरा जाति कोई मामला नहीं था। तो जो हम तेरे साथ कुश्ती के लिए तैयार हुए, मैं कुश्ती के लिए जो तैयार हुआ, तो वो इसलिए हुआ कि तू खुदा का दुश्मन है और मैं खुदा के लिए तेरे साथ कुश्ती कर रहा था। मगर जब तूने देखा कि मैं हारने की तैयारी पर हूं, तो तूने तलवार निकाली नियाम से। जब तूने तलवार नियाम से निकाली, मैंने तलवार को नियाम से निकाला, और मैं जब तू भागा जान बचाने के लिए, मैं तेरे पीछे भागा, तू आगे मैं पीछे, तो मेरा तलवार से, मेरा नियाम से तलवार निकालना खुदा के लिए था, तेरे साथ कुश्ती करना खुदा के लिए था, तेरे पीछे भागना एक एक कदम खुदा के लिए था, तेरे सीने पर सवार होना, तुझे गिराना ये खुदा के लिए था, तेरे सीने पर सवार होना ये खुदा के लिए था। मैंने तलवार को नियाम से निकाली, तेरी गर्दन के करीब तक तलवार आ गई, ये खुदा के लिए था, ये जो कुछ भी था खुदा के लिए था। मगर जब मैंने देखा कि तूने मुझ पर थूक दिया, तो अब मामला तेरा मेरा हो गया। अगर खुदा कयामत में पूछ ले, अली तूने उसकी गर्दन को दे मारा, मामला तेरा था, मैं खुदा को जवाब क्या दे? मैंने खुदा की मोहब्बत में तुझे छोड़ दिया। जो तेरा और मेरा जो मुकाबला था, तो वो मेरा जाति मामला नहीं, खुदा के लिए था। और जब तूने थूका और मामला तेरा मेरा हुआ, मैंने तुझे छोड़ दिया। ये सोच कर के अब तो मामला हमारा दोनों का हो गया। खुदा हट गया साइड, खुदा
पहलवान ने अपनी तलवार रख दी, अली के कदमों में सर रख दिया, इस्लाम को कबूल कर लिया। जिसकी जिंदगी लम्हा लम्हा खुदा की याद में हो, जो चले तो खुदा के लिए, नजर उठे तो खुदा के लिए, नमाज के लिए खड़ा हो तो खुदा के लिए, ऐसी जिंदगी जब कोई बशर करे, ऐसे अहले बैत से खुदा क्यों मोहब्बत है? तो खुदा तबारक व तआला इस आयत करीमा में महबूब को कह रहे, महबूब तुम कह दो, कोई उजरत तलब नहीं करता, मैं कोई चीज तुमसे नहीं मांगता, सिर्फ मेरी अहले बैत से मोहब्बत। तो पता क्या चला कि खुदा ने कुरान की इस आयत को नाजिल फरमा करके खुदा ने बीच में ये बात आकर के बताई, महबूब तुम अभी मत बोलो, मैं कहता हूं वो तुम बोलो। और खुदा ने कहा महबूब अब तुम कह दो ये। मतलब क्या? खुदा अहले बैत से मोहब्बत। आज दुनिया में जितने भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वो खुदा की सुन्नत अदा करते। खुदा मोहब्बत करता है अहले बैत से, तो फिर हम अगर मोहब्बत करते हैं तो ये खुदा की सुन्नत अदा होती है, अल्लाह की सुन्नत अदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है अहले बैत से, हम भी अगर मोहब्बत करते हैं तो खुदा हमसे राजी होगा। बहरहाल कहने का मतलब मेरा यही है कि अहले बैत से मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने हमसे कहा कि तुम करो। जब खुदा ने कहा, खुदा ने नबी के जरिए हमको कहलवाया, और फिर ये जो शहादत का जो मामला है इमाम हुसैन का, तो बहुत मशहूर था, बहुत मशहूर। आप छोटे थे इमाम हुसैन जब से, एक मतलब अल्लाह के रसूल अपने बेटे को गोद में लिए हुए हैं और एक तरफ इमाम हुसैन को लिए हुए हैं, और अचानक जिब्रील आ गए। खुदा ने दो में से एक को मांगा है। क्या कहा जिब्रील ने आकर के दो में से एक को खुदा चाहता है, दो में से एक को मांग रहा। तो अल्लाह के रसूल ने ख्याल किया कि अगर बेटा जाता है मेरा तो मुझे ही गम होगा, अगर हुसैन गया अली को भी गम होगा, फातिमा को भी उसका गम होगा, मुझे भी गम होगा। आपने कहा जिब्रील अल्लाह से कहो बेटा ले ले। एक दो दिन के बाद अल्लाह के रसूल का बेटा इस फानी दुनिया से रुखसत होता है। तो नवासा था, इधर बेटा था, बेटे को दे दिया अल्लाह के बारगाह। पता क्या चला? खुदा ने ये कह करके कि महबूब तुम कह दो, पता ये चला कि खुदा ने ये ऐलान करवा दिया कि तुम कह दो अहले बैत से करावत मोहब्बत करे। मतलब ये कि वो खुदा मोहब्बत करता है, और बेटे को दे करके अल्लाह के रसूल ने ये बता दिया कि हुसैन से मैं कितनी मोहब्बत। बेटा दिया, हुसैन नहीं दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब मदीने में चल रहे फिर रहे। कभी इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल जब नमाज में हैं पीठ पर चले जाते हैं, कभी अल्लाह के रसूल के कंधे मुबारक पर बैठते हैं। आप कितने बेहतरीन दीन मदीने में आपके गुजर रहे हैं। अरे एक मरतबा तो इमाम हुसैन बारगाह रसूल में चले गए, अभी तो होने की तैयारी थी, इसलिए कि हजरत हसन के हाथ में हिरनी का बच्चा था, जो किसी ने तोहफे के तौर पर नबी की बारगाह में पेश किया। नबी ने हजरत हसन को वहां देखा तो दे दिया खुदा करके। हुसैन आए, नाना जान हसन को जैसा दिया मुझे भी चाहिए। अभी तो इमाम हुसैन उस हिरनी के बच्चे के लिए रोए, इससे पहले नजर क्या पड़ती है कि हिरनी अपने बच्चे को लेकर के नबी की बात करते। वो हिरनी कहती या रसूल अल्लाह, वो जो बच्चा था यानी वो मेरा ही बेटा, मेरा ही बच्चा था जो हसन के पास है, और ये जो मैं लेकर गए वो भी मेरा ही है। ये बच्चा जो मेरा है मैं हुसैन को दे रहा हूं। जानवर हुसैन को अपना बेटा दे दे, अपनी औलाद दे दे, मतलब क्या? जानवर भी है वैसे। जब जानवर हो करके जानवर अहले बैत से मोहब्बत करे, हम तो इंसान है, और इंसान में भी अल्लाह तआला ने हमको ईमान की दौलत वाला बनाया। हम ईमान वाले हैं, और ईमान वाले का मकाम क्या है मालूम है? मेरे नबी फरमाते हैं कि कयामत आएगी, ये बात सही है, कयामत आएगी ये बात सही है, मगर कब आएगी? मेरे नबी फरमाते हैं कि दुनिया में अगर राय के दाने के बराबर भी अगर ईमान बाकी रहा, अभी तो कितना सारा ईमान, कितने सारे लोग सब ईमान वाले, मेरे नबी फरमाते हैं कि राय के दाने के बराबर अगर दुनिया में ईमान है, कयामत की ताकत नहीं कयामत आ जाए। पहले नहीं पढ़ता, समझ में नहीं आएगा। ईमान की ताकत यह है कि राय के दाने के बराबर ईमान दुनिया में है, कयामत नहीं आएगी। मतलब
ईमान जैसी दौलत भी उस दर से हमको मिली। और हम ईमान वाले होकर के अगर अहले बैत से मोहब्बत ना करें तो ये कितना अफसोस की बात है। अब मोहब्बत का ये मामला ही नहीं है कि हम जाए ताजियों में अपने सीनों को पीटे, हमारी माँ बहनों को हम चौराहे पर ले जाएं, ताजिए दिखाने के लिए जाएं। मोहब्बत इसका नाम नहीं। तुम पड़ोसी से अच्छा सलूक करो, हुसैनी कहलाओगे। माँ को मोहब्बत की नजर से देखोगे, हुसैनी कहलाओगे। लैंडर में धोखा ना दोगे, हुसैनी कहलाओगे। वादा करके वादा नहीं करोगे, हुसैनी कहलाओगे। नजर झुका करके चलोगे, हुसैनी कहलाओगे। तुम्हें हुसैनी माना जाए। दुनिया में ये हुसैन का मानने वाला है, हुसैन का चाहने वाला है। कहने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हुसैन के चाहने वाले। अजाने हो, खामोश रहो, मस्जिद की तरफ रवाना हो जाओ। अगर तुम मस्जिद की, अब देखिए एक बात यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझा दूं। अजान जब होती है मस्जिद की तरफ हमको चलना चाहिए, मगर ये जो ताजिया जब निकलता है, चाहे वो तीसरे दिन से निकला हो, तीसरे चांद से निकला हो या पांचवें चांद पर हो, कभी भी हो, मगर एक बात याद रखो कि जब भी ताजिया जब लेकर के हम निकलते हैं तो उसमें तकरीबन हम शाम का वक्त ज्यादा रखते हैं। और शाम का वक्त मतलब असर से पहले या कभी असर के बाद। अगर असर से पहले लेकर के निकले तो असर की नमाज का कानून है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, हाफिजू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता। बीच वाली जो नमाज है उसको तो छोड़ो ही मत, यानी असर की नमाज। अब हम ताजिया लेके निकले, नमाज असर हमारी छूट रही है, अज़ानें हो रही है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान सुन्नियत का, सबसे बड़ा नुकसान। मगरिब भी है, इशा भी है, फिर वही 12-1 बज गया तो फजर भी गई। नुकसान क्या है मालूम है? हम जब ताजिए के साथ चलते हैं तो उस वक्त कुछ बेईमान लोग दूसरे भोले भाले सुन्नी मुसलमान का हाथ पकड़ लेते हैं, और वो खड़े भी इसलिए होते हैं, उसका हाथ पकड़ करके कहते हैं कि देख, नमाज के बारे में कुरान में अल्लाह ने जगह जगह पर फरमाया कि तुम्हारे ऊपर फर्ज है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। देखो मस्जिद, हालांकि वो सुन्नी का हाथ पकड़ करके कहता है, उसका ध्यान दिलवाते, देख इधर देख, ये देख कितना खुदमखुदी कर रहे थे, इनके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है क्या? हुसैन ने ऐसा किया था? अब बेचारा भोला भाला है, ये बात सही है, ये नमाज छोड़ रहा है। अब उसके बहकाव में आकर के वो सब चला गया। नुकसान किसकी वजह से हुआ? देखिए एक बात, देखो आप, मैं शरीयत के एतबार से एक बात किसी बताऊँ, ऐसा न ऐसा कभी कब होता है मालूम है? जब हम घर पे निशान बुलाते हैं तब भी ऐसा ही होता है। इसलिए कि उस वक्त भी जमाती ख्याल के लोग यही करते हैं, जब वो डब बजती है तो उस वक्त जमात जैसे वहां से निकलता है, देख लेता है कि यार नमाज अजान हो रही है तो डब बजा है। निशान वाले तो जितने भी, हालांकि मैंने 1-2 निशान वाले ऐसे भी देखे कि नमाज के टाइम पे मस्जिद में आते नमाज भी पढ़ते, मगर ज्यादातर निशान वालों का ये आदत बन गई है कि वो नमाज के टाइम पे मस्जिद में तो नहीं आते, वहां थोड़ी देर जब अजान होती है तो अपने डब्बों को रोक लेते हैं। ये मैंने देखा है। तो अब यहाँ पर भी ये लोग ऐसा ही करते जमात। अगर गुजरात में जो लोग मस्जिद में नहीं जाए, एक सुन्नी सही अकीदे वाला मुसलमान को, जो भोले वाला मुसलमान, उसको कहेंगे जो आदत पर नमाज पढ़ते थे, आदतों के हमने आगे उठा सुन्नियत मानो, अब वो उसकी बात को मान लेगा कि बात इसकी सही है। तो अब ये उधर चला गया, किसकी वजह से? हमारी वजह से। ताजिए में हम 3-3 नमाजें छोड़ देते हैं, और रात को लेट आए तो फजर भी छोड़ दी, और वही फजर में वही ध्यान रखता है, उसको कहता है जो मैं तब कीधु तो नहीं आके रात 12 बजे गया और मनिया जो ध्यान है दिखा बुला के दिखाते देखो मन नहीं है। ऐसा ऐसा कव्वाली में भी होता है। तो ये जो नुकसान सुन्नियत का हुआ तो कुछ ऐसी बातों की वजह से हुआ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोए इससे पहले हिरनी आकर के अपना बच्चा दे, पता क्या चला? जानवर भी है। और ईमान की ताकत क्या है? कयामत आ ही नहीं सकती। और मेरे नबी फरमाते वो इसलिए कि कयामत ईमान वालों पर है ही नहीं, बेईमान पर।
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी जिंदगी जीने का एक तरीका हम लोगों को बता दिया। वाक़यात करबला अगर तुम किताबों में पढ़ो या किसी आलिम से सुनो तो समझ में आएगा कि ये जो भी बात है किसी न किसी मकसद को रखती है बात, कोई ना कोई मकसद जरूर है इसमें, कोई ना कोई हमको सीखने वाली बात जरूर है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपका बचपना है, आप वजू फरमा रहे हैं और वजू दोनों भाई बचपना है, दूसरे भी नमाजी लोग थे कि अचानक हजरत इमाम हसन या हुसैन दो में से किसी ने कहा भाई देखो मैं वजू फिर से बनाता हूं, मेरी वजू में कोई भूल तो नहीं, आप देखो। जब ये बात जोर से कही तो आजू बाजू वाले भी सोच में पड़ गए, ये वो लोग हैं, ये वो घराना है कि जहां से शरीयत का कानून निकला, शरीयत खुद इनके घर से निकली। वो कहते हैं कि देख मेरे भाई मेरे वजू में कोई गलती है कि नहीं। जब ये बात इमाम हसन या हुसैन दो में से किसी ने कही होगी तो सहाबा जो बैठे थे आजू बाजू उनका तो ध्यान गया होगा, उनको भी ताज्जुब हुआ, अपना वजू रोक दिया उन लोगों ने, अब उनके वजू को देखने लगे। यार वजू करने देखे तो सही, एक भाई दूसरे भाई को कह रहा है कि मेरी गलती हो तो बताओ, जानबूझ करके उस जगह पर गलती की वजू करते करते, और या तो छोटे भाई या बड़े भाई ने किसी ने हाथ पकड़ दिया। मिसाल के तौर पर अगर हसन ने अगर हाथ पकड़ा इमाम हुसैन का तो कहा है कि भाई हुसैन के हाथ पर तुम्हारी वजू में भूल हो गई है। इमाम हुसैन मुस्कुराए, वो वहां पर उनकी भूल तो सही करवा ली, मगर जब घर आए तो पूछा इमाम हसन ने, दुनिया वालों ने नाना की बारगाह से वजू का तरीका सीखा, शरीयत हमारे घर से निकली, और वजू में तुम्हारी ये मैं समझा नहीं। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने ये सवाल किया तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया, भाई बात ये है सुभान अल्लाह कि भूल मैंने जानबूझकर की, मेरी भूल नहीं थी। क्यों? तो कहने बाजू में जो वजू बना रहा था, नाना का कलमा पढ़ने वाला सहाबी, उससे वहां पर वो चीज छूट रही थी वजू में। हम तो कहते हैं मैं मौलाना कह रहा था इसके लिए मैं मतलब मालूम है, हम तो ऐसा कह देते हैं, हमारा बेटा हो ऐसा कह देता है, अगर खानका का सज्जाद नजर वो कह देता है, तो इतनी भी समझ नहीं पड़ती मेरे आपा की बारगाह में, तेरे पीर की बारगाह में इतने वर्षों से बैठता है, ये समझ नहीं मिलती। मगर तरीका देखो इमाम हुसैन का, अहले बैत में से आप डायरेक्ट कह देते नाना जान का कलमा पढ़ने वाले ये क्या कर रहे हो, असहाबी का नुजुम कहा तुम्हें मेरे नाना ने, मिसले सितारा हो और तुम्हें तुम्हारे नक्शे कदम पर जो चलेगा वो हिदायत पा जाएगा। और नाना ने यहाँ तक कहा है कि जिसको खुदा एक मर्तबा हिदायत दे दे वो कभी हिदायत से भटक भी नहीं सकता। तो तुमसे तुम्हारे तौर तरीके पर चलकर लोग हिदायत पाने वाले, अगर हुसैन चाहते तो कह देते, नाना थे नवासे थे नाना क्या, मगर नहीं, दुनिया वालों को तरीका बताया, तुम्हारी डिग्री कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रोग तुम्हारा मत झाड़ो। नबी ने इमाम हुसैन ने तरीका बताया। इमाम हसन ने कहा कि तुम्हारी भूल, कहा भूल मेरी नहीं थी, बाजू वाले सहाबी की भूल को सुधारना था। और जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा, मैं इसलिए उस वक्त मुस्कुराया, मैंने देखा उसने अपनी भूल को सुधार लिया। ये जिंदगी थी इमाम हुसैन की, ये तरीका था। देखिए आप बाजार में जाते हैं, बाजार में हम जब जाते हैं 1000 रुपया जेब में हो तो हम क्या करते मालूम है, बरस 10 रुपए की आइटम 10 रुपए की लेनी है, मगर बंडल तो 1000 का निकालते हैं, ये हमारी आदत है। और कभी कभी दोस्त रिश्तेदार साथ में होते हैं तो ऐसा हम दो दबदबे से चलते हैं, 40 रुपए की आइटम होगी 50 रुपए दे देंगे उसके लिए, उसको अच्छा दिखाने। भैया जिंदगी तो देखो, न्याज भी हम करते थे, ये करते हैं, पड़ोसी ने इतने की नहीं है तो कर्जा लेकर के न्याज करते हैं, सतवासा किया है उसने इतना किया मैं ऐसा करूंगा। सुन्नियत अगर ज्यादातर बर्बाद हुई तो इस वजह से भी हुई है। रोसे आजम ने नहीं कहा कि कर्ज से करके फिर न्याज करो, और कर्ज का देखिए कर्ज का टॉपिक बाद में मिलूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल
जब हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम कर्ज लेकर के ये काम करते हैं और उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो जिंदगी है हम तो ऐसा कर देते हैं। दोस्त था साथ में, रिश्तेदार थे, उसको दिखाने के लिए 40 रुपए के आइटम में 50 रुपए दे देते और से निकाल कर दे देते। मगर इमाम हुसैन का तरीका मालूम है क्या था? इमाम हुसैन भाव करवाते थे। आप सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते हैं, भाव करवाते थे। गरीबों, तुम जब भाव करवाओगे ये हुसैन की सुन्नत अदा हो जाएगी। भाव करवाओ, घमंड में मत रहो मेरे पास इतना है दे दूंगा। भाव करवाओ, ये भाव करवाना ये सुन्नत है इमाम हुसैन। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो जिंदगी का जो मामला है, कुछ रास्ते पर 4 लोग खाना खा रहे थे और कुछ रिवायत में ये भी बताया गया है कि शायद वो फकीर लोग थे या मुसाफिर थे। इमाम हुसैन का गुजर जब घोड़े पर बैठ करके आप वहां से निकले तो उन लोगों ने पहचान लिया और कहा, शहजादे आइए हमारे साथ बैठ कर दिखाइए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी सवारी रोक दी। हम तो गरीब की मैयत में भी नहीं जाते, ये सोच कर क्या उसको क्या है, जरूर होगी तो आएगा, ये सोच कर उसको हम मैयत में भी नहीं जाते। एक बात याद रखो, गरीब अमीर मत देखो, मैयत हो जाए चले जाओ। जब हम दुनिया से जाएंगे हमारी मैयत पे वो आएगा। और नबी फरमाते हैं कि जिसकी नमाज़े जनाजा में 3 सफे बन गई, मेरे नबी फरमाते हैं बगैर हिसाब और किताब उस मरहूम पर जन्नत ना। तो हम तो गरीब की मैयत में भी नहीं जाते, और जाते भी तो कैसा, उसने मुझे देख लिया, जिसका बेटा मरा था उसके बाप ने मुझे देख लिया, फिर कांधा भी नहीं देते, निकल जाते हैं। इमाम हुसैन को बुलाने वाले वो 4 इंसान रोड पर बैठ करके सड़क के किनारे पर खा रहे हैं खाना, और इमाम हुसैन को बुलाया। इमाम हुसैन चाहते थे, कह देते तुमने मुझको बुलाया, मालूम है तुम्हें मैं कौन हूं? मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूं। ऐसा कह सकते थे आप? तुम किसको बुला रहे हो? सड़क पर, वो भी सड़क में तुम बुला रहे हो, सड़क के किनारे पर, वो भी खाने के लिए, बैठने की बात। मगर नहीं, इमाम हुसैन ने सवारी को रोक दिया, और सवारी को रोकने के बाद उनके साथ बैठे, खाना भी खाया हुसैन ने। और हुसैन ने जब खाना खा लिया, खा करके खड़े हुए, इजाजत लेकर के खड़े हुए। हम तो इजाजत भी नहीं लेते, हो सकता है उसका शादी है, इजाजत लेने का 5000 उसी के मांग लेगा। ये हमारी जिंदगी। मानते किसको? अहले बैत को। अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं, और जिंदगी क्या है? मुंह भी नहीं दिखाते। खाना खाया, देख रहे थे इरादा, अरे वो लिखने वाले बैठे उधर से भी नहीं करते, क्योंकि लिखने वाले भी पहचान वाले होते हैं, कभी कभी ऐसा भी कर लेते हैं। इमाम हुसैन उठे तो इजाजत लेकर के उठे, और उठते वक्त कहा, खाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारा दिल रखने के लिए बैठ गया। और जब घोड़े पर से उतरे, एक रिवायत ये भी है कि घोड़े पर से जब उतरे तो आपने यूं कहा था कि मैं इसलिए तुम्हारे साथ बैठता हूं, हम तकब्बुर करने वालों में सब नहीं है। तो ये जिंदगी थी इमाम हुसैन की, और ये करबला में तो 3 दिन प्यासा रखा। हुसैन की जिंदगी तो देखो, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब शहजादे बीमार हुए तो उन्होंने मन्नत रख ली। हजरत फातिमा तो ज़हरा जब ये तंदुरुस्त जो हो जाएंगे, अल्लाह इनको शिफा अता कर देगा, मैं 3 रोजे रखूंगी। हजरत फातिमा ने ये इरादा कर लिया, मन्नत रख ली, और इधर शहजादों को अच्छा भी हो गया, तंदुरुस्त हो गए। इमाम हसन और हुसैन जब तंदुरुस्त हो गए तो फिर हजरत अली से फातिमा ने कहा कि मैंने तो मन्नत रखी थी, अब मुझे रोजा रखना है। हजरत अली कहते हैं कि उठ जाना रात को, हमें भी रोजा रखूंगा। दोनों उठे, हजरत फातिमा हजरत अली उठे, रोजा रखने के लिए इफ्तारी सहरी के वक्त उठे, उधर उनकी भी आंख खुल गई, दोनों शहजादों। जब शहजादों की आंख खुली तो कहा, रोजा तो हमको भी रखना है, रोजा हमको भी रखना है। बचपना और रोजे, हम तो रमजान के रोजे नहीं रखते, ये बचपना और रोजे जो फर्ज है वो नहीं रखते।
और यहाँ तो मन्नत वाला, और इन्होंने तो मन्नत रखी भी नहीं थी, मन्नत तो हजरत फातिमा ने रखी थी, फिर भी कहते हैं अम्मी जान हमको भी रोजा रख लो। तो क्या था, तो अच्छी अच्छी चीजें ढूंढते हैं, दूध और खजूर, इससे एक सहरी किया। इससे सहरी करने के बाद पूरा दिन रोजे में, जिक्र इलाही में, नमाजों में, पूरा दिन इधर इफ्तार का वक्त फाका किसी तरह से भी चलती थी, गुर्बत का माहौल ऐसे भी घर में था, थोड़ा सा जौ मिल गया, हजरत अली ने फातिमा को दिया, फातिमा ने चक्की में डाला, पीसा, आटा निकाला और फिर रोटी बनाई। तकरीबन रिवायतों में अलग अलग रिवायतें हैं, तकरीबन 3 रोटियां बनी होगी शायद। और उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही इफ्तारी, कि अभी बिलाल अजान थे कि हम इफ्तारी करेंगे, क्या इफ्तारी करते, किसी मांगने वाले ने बाहर से अल्लाह के नाम पर मांग लिया, और दर भी तो देखो, जिस दर से कोई खाली गया ही नहीं होता, खुद हजरत हुसैन उठे, रोटी दे दी हजरत हुसैन ने जाकर के। सहरी किस चीज से की, खजूर और दूध से, और इफ्तारी किससे की, खजूर और पानी से। पूरा दिन भूखे थे, 1-2-3 रोटी सामने आई भी, वो भी मांगने वाले को दे दी। लेकिन कोई भी बात ऐसी लगे आपको कि वाकया हमारे इमाम साहब ने बता दिया, मुझे 4 मिनट बोल दो, ये वाकया हो गया, तो आपने आपकी जो भी 3-4 मिनट 5 मिनट बच जाए, वो 5 मिनट आपको दूसरा वाकया सुनने के। तो कोई भी बात ऐसी अगर आपको ऐसा लगता है कि इमाम साहब खाली इशारा करते हैं कि वाकया हमने सुन लिया, तो आपको कोई नई बात दूसरी सुनने को जाए, तब से बाप ने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और नबी नाम मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी वाकया इसलिए कि मैं का बोला था, अभी 10 मिनट बाकी है। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला इफ्तारी कर ली उन्होंने, मगर रोजा तो 3 की बात थी, 3 रोजे रखे इन लोगों ने। फिर दूसरे दिन फिर सहरी में उठे, इमाम हसन हुसैन ने भी रोजा रख लिया, फिर वही पूरा दिन भूख और प्यास में, रोजे की हालत में नमाज, जिक्र इलाही, फिर इफ्तार का वक्त आया, फिर किसी मांगने वाले ने आवाज दी गई, फिर दूसरे दिन भी दे दिया, दूसरे दिन भी दे दिया। अब हम होते तो क्या करते, हम होते तो क्या करते, मेरी बात तो कुर्बानी के टाइम पर कोई को अंदर आने नहीं देते, पहले से प्रोग्राम फिक्स हो जाता है, आप आपको बुला लेंगे, वो चाचा अपने साथ अच्छी रहते हैं, चाचा को बुला लेंगे, पहले से प्रोग्राम फिक्स होता है, इसका हिसाब नहीं हो तो चलेगा, उसको तो वो भी चलेगा, प्रोग्राम फिक्स कर देते। और फिर बाद में होता क्या मालूम, 8-10 दिन के बाद अंधेरे का इंतजार करते हैं, कुर्बानी का गोश्त किसी का हाथ तुमने जो फ्रिज में रखा था, तुम अंधेरे का इंतजार करते हो, अंधेरा हो तो फेंक देते, आपको देखे तो बात फेंकने की आई क्यों, किसी का हिस्सा तुमने रख दिया। ये हमारी जिंदगी, और उनकी जिंदगी देखो, कसम खुदा की रिवायत में आता है कि तीसरे दिन, जब दूसरे दिन तो दे दिया, अब तीसरे दिन खुद इमाम हुसैन दरवाजे पर खड़े रहे, इमाम हुसैन दरवाजे पर खड़े रहे कि 2 दिन तो आया कोई, हो सकता है आज भी कोई आ जाए, कौन इंतजार करता है, हम तो रख लेते हैं फ्रिज में, हक मार लेते हैं 3 हिस्से का। देखिए ऐसी भी एक शरीयत, तो कानून एक ये भी है कि अगर मेंबर ज्यादा हो तो सब रख सकते, वो बात अलग है, मगर नहीं, जहाँ अलग, ये अलग, वो अलग, फला मेहमान मामू आने वाले तो उनके लिए पाए उस वक्त बनाएंगे, प्रोग्राम हम बना लेते हैं। पड़ोसी का हक तो नबी ने इतना बताया, सहाबा फरमाते हैं कि जब नबी पड़ोसी का हक बता, तो हमको कभी कभी ऐसा वहम रहता, हमको कभी भी ऐसा हो जाता कि नबी हमारी मिल्कियत का कहीं पड़ोसी को वारिस ना बना दे, पड़ोसी का इतना हक नबी बताते थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद दरवाजे पर खड़े रहे, और आया भी तो कौन आया, ऐसा इंसान आया कि वो कहता है मैं अजनबी हूँ, मैं कैदी हूँ, आज ही मुझे जेल से छोड़ा, सबसे पहले तुम्हारे दरवाजे पर आकर। इमाम हुसैन कहता फिक्र करने की तुझे जरूरत नहीं है, मैं इसलिए तो खड़ा था, मुझे मालूम था कि 2 दिन आया तो तीसरे दिन मुझे 3 दिन की सहरी दूध और खजूर से, 3 दिन की इफ्तारी पानी और खजूर से, ये जिंदगी आने बैठी थी। एक मतलब एक मांगने वाला आया, मांगने आया, तो जब मांगने वो आया
مگر جب وہ جانے لگا تو امام حسین سے کہتا ہے کہ تم نے میرے حصے کا مجھ کو جتنا دینا تھا وہ تو تم نے مجھے دے دیا، یہ میرے پیٹ کے لیول کا ہے، مجھے اتنا ہو جائے گا، مگر تمہارے پاس اور ہے؟ امام حسین پوچھتے کیوں؟ تو کہا کہ سامنے جو بابا بیٹھے ان کو دینا ہے، سامنے جو بابا بیٹھے ان کو دینا ہے، حالانکہ یہ دروازہ بھی اسی نے مجھے بتایا، میں تو مانگ رہا تھا بھی، میں بھیک مانگ رہا تھا، یہ دروازہ اسی نے بتایا اور میں اس کے لیے مانگ رہا تھا۔ امام حسین روایتوں میں آتا ہے، امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ وہ بابا اور کوئی نہیں، وہ میرا باپ حضرت علی ہے۔ حضرت علی نے مانگنے والے سے کہا تھا کہ تجھے بھیک نہیں ملتی، پرواہ نہیں کر، اس لیے کہ تجھے اگر پیٹ ہی بھرنا ہے سامنے دروازے پر چلا جا، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، حضرت علی کا خود کا تھا۔ یہ زندگی تھی اہل بیت کی، طور طریقہ اہل بیت کا، تم زندگی کا کوئی بھی لمحہ اٹھا کر کے دیکھ لو، زندگی جینے کا طریقہ ملتا ہے۔ یہاں سے میں اپنی بات کو باقی رکھتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ دعا کرنا، اس لیے کہ طبیعت کے اعتبار سے میں نے 10 دن کے پروگرام کی بات تھی، بہت ضد ہوئی، میں نے منع کر دیا تھا، مگر اور ضد جب بڑھ گئی تو پھر ان کا مان رکھتے ہوئے میں نے 5 دن کا پروگرام کیا، اور یہ جو پروگرام میں نہیں دے رہا تھا میری طبیعت کی وجہ سے۔ آپ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ تندرست کرے۔ میں اپنی بات کو یہاں سے باقی رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ پبلک کم ہونے کی وجہ میرے سمجھ میں ایک بات آئی، تم نے جو یہ سویدھا دے دی یوٹیوب والی آن لائن لائیو پروگرام دکھانے کی، تو جب لوگوں کو گھر میں مل جاتا تھا یہاں کیوں آئیں؟ یہ بات میرے دماغ میں اثر ڈال رہی، اس لیے کہ پبلک، ورنہ پبلک اتنی تھی وہاں جب پہلے پروگرام ہوتے تھے، بیٹھنے کے لیے لوگ جلدی آ جاتے تھے، اور ابھی پبلک کم ہونے کی وجہ میرے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ شاید لائیو پروگرام دینا، لوگوں کو گھر میں پنکھے میں صوفہ میں بیٹھ کر کے سوتے سوتے اگر یہ پروگرام دیکھنے کو ملتا مسجد میں کون آئے گا؟ مگر یہ جو جتنے بھی لوگ یہ جتنے بھی لوگ جو لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ بھلے آپ اگر بیمار ہو یا مسجد میں آنے میں تکلیف ہوتی ہو، اگر تم اس طریقے سے یہ پروگرام گھر بیٹھے دیکھتے ہو تو بات الگ ہے، مگر اللہ نے تندرستی دی ہے تو مسجد میں آؤ۔ مسجد میرے نبی فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ مسجد میں ایک اللہ بیٹھا ہوگا تو اس کا تو سوال ملے گا۔ تو یہ جتنے بھی لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اگر اللہ نے طاقت تندرستی دی ہے تو آپ لوگ مسجد میں آ کر کے یہ پروگرام کو سننے کی کوشش کریں، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے سنا سبحان اللہ بات ختم، ایسا نہیں۔ میں نے پڑوسی کے تعلق سے بتایا، ماں باپ کے تعلق سے بتایا، بھلے وہ امام حسین کی زندگی کے اعتبار سے میں نے بتایا، مگر یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ جو کچھ بھی باتیں میں نے کہی آپ لوگوں نے سنی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔